We have two very great professors here. One is Professor Anand Sharma, who is 91 years old, and he is very well versed in the Gita, Mahabharata, Ramayana and Vedas. And we have Vedyacharya, the Professor Gaur, who was previously VC of Jodhpur Ayurvedic University, and he is very well versed in all Ayurvedic scriptures and many other scriptures. So we are very happy to greet you all on this great occasion, and without any delay I would like for the program to start. First, before that, we will give the mala to, just for your information, Professor Gaur was now in Ayodhya, and he was given a Lifetime Achievement Award, and on this occasion I would like to present him with the mala. And of course, our dear professor, who never likes to get mala, but you can start. Om Krishnam Vande Jagatguru। मेरे अत्यंत मान्यवर और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गौर और हमारे महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर जी और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के नियंत्रक श्री सुरेंद्र जी और सभी मेरे बंधु जो पर्याप्त समय से इस साहचर्य में रहे हैं, उन सबके प्रति अपना मैं नमस्कार देता हूँ और आगे अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये कुछ पर्व जिनको हम मनाते हैं वो इस प्रकार के हो गए हैं कि एक दूसरे के उस निकट से आता जा रहा है। तो हम अपनी जगह अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं और जब इन पर्वों को मनाते हैं तब हमें पता नहीं चलता हम ग्रंथ के अनुकूल पर्व मना रहे हैं या पर्वों को अपनी मर्जी से मना रहे हैं। इसका पता सबसे अधिक पहले मुझे पता चला हमारा दशहरा। क्या है दशहरा? दशहरे में रावण को जलाने का प्राय उत्तर भारत में सर्वत्र प्रचार है। कभी हमने बैठे सोचा है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण जहाँ पढ़ते हैं वहाँ दशहरे से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। लगता है नहीं दशहरा रावण के मरने का दिन है और यह कहीं भगवान राम के उस बाण का प्रभाव है कि वो जल रहा है। दशहरे के साथ आगे बढ़े। So, Professor Sharma ji, he's trying to warn us about he's making a point about the problems with the calendars nowadays, and especially with the celebration of calendars and festivals in India. There are two calendars, some are followed in the south, some are followed in the north, and sometimes the difference between them can be even the 6 months, 1 month, and so on. But the thing is that, for example, recently in North India we celebrated Dashera, the day of when Ravana was conquered and killed by Lord Rama. Now the problem with that is
that the date which we are celebrating in North India, this day is actually according to the old calendars off by few months. इस दशहरे से जुड़ा हुआ, इससे संबंधित क्या लीजिए, दूसरा पर्व हमारा दीपावली। दीपावली के पास में एक पर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। वो धन्वंतरी त्रयोदशी और उसे एक दिन बीच छोड़ करके नरक चतुर्दशी, और वो जो 15 दिन है वो है दीपावली। दीपावली को माना जाता है कि जब राम और वहाँ से लौटे लंका से या वनवास से, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। तो दशहरा और राज्याभिषेक यह हुआ। एक इसके बीच में जरूर अलग प्रश्न आया है, धन्वंतरी त्रयोदशी। लोगों ने इसको अपभ्रष्ट रूप में बोलना प्रारंभ किया, धनतेरस, और उसका अभिप्राय यह हो गया कि भले हमारे घर में अपनी आवश्यकता की और सभी कामों की, सभी वस्तुओं की पूर्ति हो, पर आज के दिन कुछ न कुछ नया खरीदना ही चाहिए। क्या सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य कीमत का गिलास ही खरीदेगा, पर हम खरीदेंगे। तो कहाँ वो भगवान धन्वंतरी के निमित्त दी हुई त्रयोदशी, और कहाँ धनतेरस, इस में ऐसी त्रयोदशी जहाँ भगवान धन्वंतरी का नाम ही उड़ गया, और कौन धन्वंतरी है कौन नहीं है ये भी हम भूल गए, ये भी विचार नहीं है। So we have connected with this Dashera, we have also the Diwali, and also with after Diwali we have also the Raja Abhishek, the coronation of Lord Rama, and then we have also one more festival called Dhanteras. Dhanteras is the day of birth of Dhanvantri, the Ayurvedacharya, the first doctor, Ayurvedic doctor who came out of the ocean. And but now, due to these modern times, instead of celebrating the birth of or appearance, incarnation of Dhanvantri and the medicine, appearance of the medicine which came with him, today is only that you have to buy something on this day. Even if you buy one glass, your Dhanteras or 13th day is successful. So there are the problems with the festivals which they got sidetracked from the original point to something else. तो इस प्रकार इनसे संबंधित और बातों पर देखते हैं तो एक बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है कि ये जाम्बवान है, यह वानरों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे वयोवृद्ध है। इसको हमने वानर की जगह ऋक्ष बना दिया, और ऋक्ष का अपभ्रष्ट शब्द होता है रीछ। जैसे वानर को बंदर बोलते हैं, और बंदर का जो आकार है, और फिर राम के महान कार्यकर्ता, महान भक्त, शास्त्रों के अत्यंत निपुण विद्वान, सारे धनुर्वेद आदि के ज्ञाता, इन दोनों व्यक्तियों को, जाम्बवान वगैरह को लें और वानरों में हनुमान को लें, इनको हमने भुला दिया। और जिस प्रकार से हम मंचों पर इनको दिखाने लगे, ये हमारे लिए बड़ा दयनीय स्थिति पैदा करने वाला है। So the other problem which Professor is telling us about is that there is in Ramayana, there are two very great characters. One is Jambavan, the king of bears, and Hanuman, which is very famous monkey in nowadays. Now the problem is that both of them are know all Vedas. They all know Rig Veda, Yajur Veda, Samveda, and Athar Veda. They know all science, all knowledge they have, and they learned everything. They're very scholarly people. So how come that from this person, how the bear or the monkey can be so learned that they would actually do what they are doing now, or be so instead of having Jambavan and Hanuman as one species of humans, which can be, one worm is the one who lives in a forest, so from that it becomes monkey. So the professor is trying to tell us that this fall down of in the language, the changes which happen in the language from the Rich, which is also one name of the rishis, became from Riksh became Rich, from Rich became bear. So this is also two quite big points.
तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो धन्वंतरी जो वहाँ बीच में है उसका संबंध निश्चित रूप से भगवान राम के आसपास समय का ही होना चाहिए। और उन धन्वंतरी की आज संहिता को जो उनके शिष्य के नाम पर सुश्रुत संहिता, उसको हम ईशा से 600, 700, 800, अधिक 1100, 1200 तक ले जाते हैं। और कहाँ राम और कहाँ आज धन्वंतरी के शिष्य सुश्रुत की कृति ये जो है वो, तो इन सारी चीज़ों को विचार करने के लिए जब तक हम इन ग्रंथों को इनके निजी रूप में नहीं देखेंगे और परंपरागत ढंग से जो किसी विशेष कारण से लेकर स्वीकार कर लिया है कि जैसे मोक्ष देने वाली एकादशी होने से गीता जैसा ग्रंथ तो मोक्ष देने के लिए है, इसलिए वो तो मोक्ष की एकादशी को ही होगा, और वो प्रतिपदा को है, द्वितीया को है, तृतीया को, हमें कोई संबंध ही नहीं रखा। So, in the same way, due to the passage of the years, passage of the time, the Dhanvantari was his birth is sometimes on the same time when the Rama was there, but his creation of Sushruta Samhita, one very great Ayurvedic Granth book, is earliest they put it in 1100 before BC, before Christ. So now the problem is that how can we put these opposite things which we look when we look at the historical point of view and when we look at the literary point of view, how we can come to some conclusion, what is the reality? मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ अनेक धन्वंतरी हुए हैं, किंतु यह सुश्रुत संहिता के रचयिता कहना चाहिए क्योंकि उनके शिष्य सुश्रुत ने लिया उसको, उन धन्वंतरी का समय और महाराज दशरथ का समय एक है। राम के पिता दशरथ और हमारे आज की जो ये सुश्रुत संहिता है उनके एक वक्ता, आचार्य, उपदेष्टा धन्वंतरी दिवोदास जो काशी नरेश थे, वो भगवान राम के और दशरथ के समय के ही थे। और इन्हीं जो धन्वंतरी के पुत्र हैं वो राम के परम प्रिय शिष्यों में हैं, जिनके साथ में बचपन से जिनके संबंध चलते हैं। और यार तुम्हें बात होती है, वो धन्वंतरी के सुपुत्र और राम, इन दोनों में एकता है, ये भी हमें उससे मिल जाएगा। So now the solution for this problem, which Dhanvantari it was that, and we will find this problem all over the Indian literature, is solved quite easily by because sometimes there is a title or sometimes there is like a family name, like we have Vishwamitra, Vashishta and many other there are family names like Bharadvaj and so on, like we have here Sharma. So in the same way, there was one Dhanvantari, so one of the successor of original Dhanvantari, or one Vedya who actually wrote Sushruta Samhita, and he was he was somehow living in the time of Lord Rama's Lord Rama's father Dasharatha, and his son was big friend of Rama. तो इस दृष्टि से विचार करें तो हम इनके काल को देखते हैं तो दोनों ही ग्रंथों में, रामायण में भी और महाभारत में भी, ये सारे दिन स्पष्ट लिखे हैं कि किस दिन महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और किस दिन जो है ये राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। अब अगर जब ग्रंथों में इतना स्पष्ट है तो हम क्यों नहीं उसे सामने ला रहे हैं, प्रश्न है। So now the question is, because through the Mahabharata and through the Ramayana we know exactly the date when the Mahabharata started, the Great War, and we know from Ramayana when was the coronation of Rama and when was the death of Ravana. So why we cannot put this in a practice? इस दृष्टि से मैं आपको अत्यंत संक्षेप में और रामायण में दिया और समय बता रहा हूँ कि हम जानते हैं कि राम को और
उनके एक माता के दुराग्रह के कारण पिता के द्वारा न कहे जाने पर भी 14 वर्ष का वनवास भोगना ही पड़ा है, ये तय है। अब इस 14 वर्ष के वनवास में लगभग यूँ समझ लीजिए 6 महीने कम 13.5 मास सीता राम से पृथक रही है रावण के द्वारा हरे जाने से, केवल इतना सही है। So we know that due to the Kekai, one of the Dashrath king's wives, queens, Rama had, even the Dashrath did not say explicitly himself, Rama went to 14 years of exile in the forest, and out of these 14 years, 13 and a half years, were Rama, Sita, Lakshmana were together, and then only last 6 months Sita was kidnapped and all this story came. तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है। प्रसंग यही है कि सीता का अपहरण हो जाने के बाद राम उसे ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो उनका जटायु जैसे लोगों से परिचय होता है। अब जटायु को तो हम जानते क्या है, एक पक्षी तो है। राम के पास जो आते हैं तो राम उससे पूछते हैं कि ये तो सब कुछ ठीक है, मैं आपके वंश से आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। तो जटायु अपने आप को कश्यप ऋषि की संतान बताते हुए और सभी शास्त्रों का विद्वान बताते हुए राम के साथ में एक लंबी चौड़ी उस वक्त की कहानी राम को कहने वाला व्यक्ति है जटायु, और राम उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं अरे ये तो मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए पिता के मित्र के होता रहा, पिता के मित्र की तरह से मान्य होंगे। और जब सीता का हुआ और ये क्या नाम जटायु उसी सीता की रक्षा में मारा गया, तो राम उनका सारा का सारा क्रियाक्रम वैसा ही करते हैं जैसे दशरथ का किया उन्होंने। So in the same way, when Sita was kidnapped, when Lord Rama was searching for Sita, he met Jatayu. In a book, Jatayu is described as the vulture, but there was discussion between Rama and Jatayu, and Jatayu said that he is descendant from Kashyap Rishi, and he also is knower of all these Vedas and all this education what was that time available. And he also, when he was trying to save Sita from Ravana and he died in the process, Rama made the same, he buried the Jatayu, so vulture, with the same way he buried his own father. So the same techniques or the same respect you gave to your father, he gave to the vulture. So of course the question is this was really vulture or is this just some story that we can easily remember? तो जब सीता के लिए राम घूमते हैं तो और लक्ष्मण को लेकर उनको कई जगह बड़ी विपत्तियाँ ही भोगनी पड़ती हैं, कई असुरों का, राक्षसों का, इनका जो है वो झगड़ा सहन करना पड़ता है, ज़बरदस्ती युद्ध भी करना पड़ता है। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ है कि अगर राम सही ढंग से अपनी पत्नी का पतवा पाना चाहते हैं तो सुग्रीव से मिले, और सुग्रीव उन्हें जो मार्ग बताएगा वही मार्ग उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो सुग्रीव के पास पहुँचे। अब राम सुग्रीव के पास जाके पतवा दिया हुआ, सुग्रीव वहाँ जगह था, वहाँ निकले। सुग्रीव ने देखा कि राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, निश्चित ये बाल्यू ने किसी लोगों को मुझे नष्ट करने के लिए भेजा है, तो तुम जाओ हनुमान, देखो ये लोग वास्तव में मेरी शत्रु हैं, मुझे मारने वाले हैं, या स्वयं इस रूप से जिनके पीछे हम सुनते हैं कि इस प्रकार वो आए हुए हैं, ऐसे लोग हैं, और तो क्या है तुम मिलो। तो हनुमान उनसे जाकर बातचीत करते हैं। So during the process of searching for Sita, Rama met so many demons, Rakshasas, and he killed many of them, and he found in the process that if he wants to find the Sita and return the Sita to him, he should take the help of Sugriva. Sugriva is in the book described as a king of monkeys. So while Rama was coming to meet Sugriv, then the Sugriv got, when Sugriv found out about that, he was very afraid because his brother
Bali took over the throne and he wanted to kill him, so now he sent his best minister or secretary Hanuman to check out why Rama came. So now this is the story about discussion between Rama and Hanuman. तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं जैसे ही ये राम के पास आते हैं, बातचीत करते हैं, हनुमान बोलना शुरू कर देते हैं और हनुमान निरंतर बोलते चले जाते हैं। और जब चुप होकर तो वाक्य पहला जो निकलता है राम के मुंह से कि देख लक्ष्मण, इस व्यक्ति को देख, क्या गजब का विद्वान है, जिस भाषा में बातचीत कर रहा है, जिस प्रकार से बातचीत कर रहा है, कोई व्यक्ति जिसने वेद वेदांगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा जान ही नहीं सकता। अरे ये तो है एक अलग, दूसरी बात एक और है, जिस प्रकार से इसका बातचीत का लक्षण है, इसके शारीरिक चिन्ह है, ये तो ऐसे हैं कि इसकी बात को सुन करके एक व्यक्ति जो मारने के लिए तलवार उठा सका उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी, इतनी स्नेह पैदा करने वाली बातें बोल रहा है। So when Hanuman, I'm trying to do just a free translation, so it will take less time because we are quite short on the time. So basically, the Hanuman went and met Lord Ram, and according to when Hanuman went and Rama was discussing with Lakshmana about them, about the conversation, he said that that person which we just met, he has the all knowledge of all Vedas. From his vocabulary, it's obvious that he is very educated and he knows everything. As good he is with the sword, that much he is also good with his words. वहाँ राम के मुंह से जो निकला है, उन वाक्यों को भगवान वाल्मीकि ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया वो है कि नांद्र की वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिण ना सामवेद विदुष शक्यमेवं विभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। ये राम के वाक्य हैं। अब देख लीजिए कि आज घर घर में एक एक वाक्य को इतना भ्रष्ट किया जा रहा है कि इस अपभ्रष्टता के विषय में हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। So in this shloka of Ramayana, the Valmiki wrote that Rama said that such an educated person who did not even do a single grammatical mistake in his speech, that person was Hanuman, and this person nowadays we are considering to be a monkey, and this is in every house. इस प्रकार इनका जब परिचय हो जाता है और उस परिचय में क्या नाम ये सुग्रीव अपना कष्ट रखता है कि मुझे अपने घर से निकाल करके मेरी पत्नी को भी अपने पास रोक कर मेरे बड़े भाई बाली ने मेरी ये स्थिति पैदा कर दी है, तो आप मेरी कुछ सहायता की थी। तो कहा भाई जब हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई है तो जो तुम्हारी पीड़ा वो मेरी पीड़ा है, तो निश्चिंत रहो कि बाली अपने इस प्रकार के पाप को बहुत लंबे समय तक नहीं ढो सकेगा, मैं उसको तत्काल ही जैसे ही मिलेगा मारूंगा। So when they became friends, when Sugriv and Rama became friends, then Sugriv explained his problem and he said that my brother, he took my wife, he took my kingdom and he threw me out and is trying to kill me. And the Rama promised, as the Rama is very famous from this first shloka, what we are doing also, we will do afterwards, that he is protecting the ones under him, who came under him. So Rama said, no problem, your problem is my problem, and I will solve whatever you have, and when I meet Bali, I will definitely kill him. तो जिस प्रकार से बाली को सुग्रीव जानता था और स्वयं सुग्रीव भी उसी प्रकार का बलवान था, किंतु उसको एक विश्वास नहीं हो सकता है कि राम बाली का कुछ बिगाड़ सकेंगे। तो बार बार वो उनसे नाना प्रकार की परीक्षाएं लेता है और उन सब परीक्षाओं में जब राम सफल हो जाते हैं तो एक दिन आखिर में वो सुग्रीव कहता है कि मुझे आदेश दीजिए कि मैं बाली को पुकारूं। Of course, the Sugriv didn't believe Ram that he can kill Bali, because Bali was very powerful.
but he was, in a sense, gave him so many tasks, so many ways, parikshas, tests, which Rama all passed, and then one day Sugriva was satisfied and he said, okay, tell me what to do and I will do it. इस दृष्टि से खैर सुग्रीव बाली को पुकारता है, बाली उसके हुंकार को सुन करके और दोनों के बीच में युद्ध भी होता है। राम का बड़ा सुंदर एक चरित्र है, वो देखते हैं और आखिर में बेचारा सुग्रीव पिछड़ जाता है और रोने लगे, देखो आपने मुझे बचाया ही नहीं, ये तो मैं जैसे तैसे बचूँगा। कि देख भाई, बात यह है कि तुम दोनों के रूप रंग को देखकर, तुम दोनों की जिस प्रकार के युद्ध के अंदर जो स्थिति है उसको देखकर मैं तय नहीं कर सका कौन बाली है कौन सुग्रीव है। ऐसे भयों में किसके ऊपर मैं एकदम से अपना, यानी राम साक्षात रूप में न सही परोक्ष रूप में कह रहे हैं कि तुम दोनों से एकात्म लग रहे हो स्पष्ट, और एकात्मता के बीच में एक द्वंद्व किस प्रकार का है कि जो मुझे उसको एक को मारना पड़ेगा, मैं अपने आप को तैयार नहीं कर सका। तो इस प्रकार से अब जा कर के उनका ठीक है, तो चलो सुग्रीव के गले में माला पहनाई गई, दूसरा युद्ध हुआ, बाली मारा गया, सब कुछ हो गया। अब राम जो है सुग्रीव को कहते हैं, देखो अब तुम्हें थोड़े से दिन आराम करना है। यहाँ पर स्पष्ट शब्द होगा, चत्वारो वार्षिका मासा श्रावण शरीरोदय, वर्षा के 4 मास हैं और उनमें बिल्कुल अंत इनका कार्तिक में होता है। तो इसलिए जब कार्तिक आ जाए, कार्तिके समनुप्राप्ते त्वम रावण वधेयता, जब कार्तिक आ जाएगा इसका मतलब अब हमारी नदियाँ वदियाँ सब जगह अनुकूल हो जाएगी, अब अपन को चलने फिरने घूमने में आने जाने में कोई कष्ट नहीं होगा, उद्योग आराम से कर सकेंगे। इसलिए तुम कार्तिक तक विश्राम करो और आओ। अब कार्तिक के बाद आप जानते कौन सा मास था? So Sugriv then Sugriv came and called Bali to fight. He lost, and he came back to Rama and said, "Why you didn't help me?" Rama said, "I could not recognize between two of you who are you and who is Bali, so I could not risk to kill you." And then he gave him the flower mala, and then with flower mala they went again to fight, and finally the Bali was killed. And then Rama said, now this is why we are talking about this, now the Rama said, now you rest for some time and rest during the monsoon season, and when the Kartik comes, then and when all this rain from the monsoon subside and all the rivers and water subside, then you should go and find out about Sita. So we are coming to the one month in Valmiki Ramayana, Kartik month. अब आप वाल्मीकि रामायण को एक ऐसा आधार मान लीजिए जो हमारे मिलने वाले साहित्य में सबसे पहले इस बात को बताता है कब युद्ध के लिए उद्योग होता है, किस प्रकार का उद्योग होता है और कब युद्ध का प्रारंभ होता है। इसको अक्षरशः भगवान वेद व्यास ने महाभारत में कहा है। So in the same way, like Valmiki said the months, in the same way in Mahabharata, Ved Vyasa exactly told the date of the beginning of Mahabharata war. तो जब ये बातें देखें हम तो स्वाभाविक है कि युद्ध के बीच में अब अपने समय देख लें कुछ ना करना कैसे कर दो 5-10 मिनट के लिए। तो हुआ क्या कि वस्तुतः जैसे ही युद्ध के लिए तैयारी हो गई, दोनों सेनाएं आ गई, बात बड़ी बढ़िया है, ये जो है कठिन है एकदम से कहना। उस वक्त सारी इनकी सेनाओं को सजाने करने का, कौन कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, किस सेना किस भाग का किसका जो है सेनापतित्व रहेगा, सारा काम प्रारंभ तक कृष्ण ने नहीं किया। किसने? कृष्ण। और कृष्ण इस काम को कर बैठे। और जब युद्ध शुरू हो गया तो अर्जुन के मुँह से एक बात निकली कि वस्तुतः छोटे छोटे सेनापतियों ने शंखनाद शुरू कर दिया। अब बताओ
कृष्ण कि मैं जल्दी से जल्दी एक बार देखूं मुख्य प्रारंभ होने पहले कि तुम मेरे रथ को इन दोनों के बीच में ले चलो। मैं देख रहा हूँ ऐसे मूर्ख कौन से आ गए जो दुर्योधन जैसे दुष्ट के लिए मरने को तैयार हो रहे हैं। So at the beginning of Mahabharata war, after the whole army, both armies were on the side of each other, the Arjun asked Krishna, please take me to the middle of the between two armies to see what we have to do and why is this all happening. और जैसे ही अर्जुन की बात पूरी हुई, कृष्ण रथ चलाते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रख देते हैं और रथ को खड़ा करते कहते हैं पश्य कुरून, इन सारे कौरवों को अब तू देख ले। ये नहीं कहा पश्य शत्रुन, किनके साथ युद्ध करना है, नहीं, पश्य कुरून। So when they came in the middle between the armies, the Krishna came out of the chariot with Arjun, and then he showed to the enemy side, to the Duryodhana and his army, and he didn't say look at your enemies, he said look at the Kurus, look at the family Kuru. कुरु वो देखता दोनों तरफ साले, भाई बंधु, भतीजे, नाना प्रकार के संबंध, गुरु शिष्य, ये सारे के सारे दोनों तरफ हैं। ओहो, हम कितना बुरा काम करने को तैयार हो गए थे, एक मात्र जमीन के लिए इतना बड़ा संहार करेंगे। कृष्ण मुझे नहीं लड़ना है, और अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। अब गीता शुरू होती है। So then when Arjun realizes that the Kuru family is not only in front of him, is also behind him, that we are actually the fighting the brothers and uncles, so he gets so depressed because all his gurus are on one side and the other side, and everybody, family is fighting family because of some land. So he gets depressed and he throws his bow and arrow, and he goes and sits behind in a chariot. And now this is the beginning of Bhagavad Gita. तो यहाँ अपन संक्षेप में इस बात को कहें तो अर्जुन ने एक तरह से यह माना कि हम अपने परिवार को किसी भी अवस्था में, चाहे हमें फिर दोबारा वनवास भोगना पड़े, कुछ नहीं मिले, पर एक भी व्यक्ति को मारना पसंद नहीं करूँगा, और यहाँ अगर यह मुझे मारेंगे मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊँगा। ऐसी भयंकर स्थिति के अंदर अब आप सोच लीजिए गीता की आवश्यकता अर्जुन को है या भगवान कृष्ण को है कि पगला इस प्रकार से व्यवहार करने लगा। यानी हम प्रजा के शासक हैं, प्रजा को दिशा देने वाले हैं, प्रजापति हैं, प्रजा के रक्षक हैं, और हम अगर इस प्रकार से भाई और बंधु पन्ने देख करके दुष्टों को राज्य करने का अधिकार देते रहेंगे तो हम वस्तुतः धर्म कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, ये समझाने के लिए सारी गीता का ये रहता है। So when what happened is that Arjun came in such a depression that he said that doesn't matter if they kill me, I will not even defend myself, but in no chance I will take my arms and kill my relatives. So the question was that did Arjuna need the Bhagavad Gita or Krishna needs to tell Bhagavad Gita? So the thing is that Krishna said, if you as a ruler of a country, if you behave like this and you let the injustice win, then what will happen to this world? And so that is the beginning of Bhagavad Gita, and in Bhagavad Gita is explained why one should not tolerate injustice, and even if his family is doing injustice, he should fight and even kill his own family. So that's the beginning. तो जैसा अपन ने रामायण में देखा, ठीक वैसा ही वाक्य यहाँ पर भी है, और वो कृष्ण कह रहे हैं कर्ण को कि कर्ण अगर जाओ और उनसे पांडवों से कह देना आज से 7वें दिन अमावस्या है, और उस अमावस्या के दूसरे दिन ही मार्गशीर्ष शुरू हो रहा है, बस लड़ने के लिए तैयार रहें, मेरे समझाने का कोई असर नहीं पड़ा और मैं निराश होकर जा रहा हूँ। So in the same way, in Ramayana, in Mahabharata is said that when Krishna came to Karan and he said in 7 days there will be Amavasya, the day of without moon, and then the Margshirsh month will start, and then the war will start, and I cannot do anything against that. तो इस दृष्टि से देख लीजिए आप, गीता का जो है उत्पादन
हम एकादशी को माने या इस प्रतिपदा को माने? प्रतिपदा पर हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखना छोड़ दिया, इस गंभीरता को भूल गए और मोक्षदा एकादशी है, एकादशी से पहले जगह कौन, और उसी दिन गीता का उपदेश हो गया। So the thing is that Krishna spoke Bhagavad Gita on the first day of Markshish month, which is today, and but people, because they are connecting Ekadashi, the 11th day of the month, with the moksha and say this is Moksha Ekadashi, the people moved Bhagavad Gita Jayanti from first day 11 days later. So Professor is objecting on this, that why we don't follow the tradition, what is written in Mahabharata, plainly that 7 days after will be Amavasya and then we will come to fight and there is nothing to stop. So that day, next day, so on first day of Markshish Mehina, which is today, the Bhagavad Gita was created. इस विषय में हम गीता में, महाभारत में और रामायण में अनेक प्रसंग देख सकेंगे और उन सारे प्रसंगों को एक जगह लेकर के, और हम ये कह सकते हैं कि यह हमारी अपेक्षा है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को अपने शास्त्रों में देखते हुए हम अच्छी तरह मानें और उसको उसी प्रकार से जीवन में उतारें। ये खास अंतिम सार है। So my request to all of you, the professor is requesting all of you to look at the scriptures and find the proper dates and celebrate the dates which as they are in the scriptures. Of course, nowadays you know that everybody has their own theories on the celebration. That it's very hard to move any celebration in any direction. So he's requesting you all just to think with your head and just follow the dates as they are in the books. ये सब सुनने के लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से कृतज्ञ हूँ और आशा करता हूँ कि हम इन सब चीज़ों को अपनाने का पूरा यत्न करेंगे। So he's thanking to all of you and hoping that you will take this in your daily life. So I would now request Professor Gaur to give a few words on a subject of Bhagavad Gita or on Ayurveda, whatever he prefers. गुणत्रय विभेदेन मूर्ति त्रय मुपेयुषे त्रयी भुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नमः। परम सम्माननीय प्रोफेसर आनंद शर्मा जी, महामंडलेश्वर जी, आपको नमन। और सभी श्रोताओं ने अभी जिस प्रकार से एक अनुसंधान पूर्ण विवेचन सुना, वस्तुतः बहुत से इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि निश्चित रूप से एक बात दूसरी बात से किस प्रकार से संपृक्त होती है, जुड़ती है। जब तक एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को जोड़ा नहीं जाता, निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कितनी श्रेष्ठतापूर्वक आपने ये बात बताई कि महाभारत और रामायण के पहले संपर्क को आपने संस्थापित किया और उसके बाद एक निश्चित तिथि बताई। So Professor would like to tell us that as we listen to the previous lecture, there are so many more examples of this, how people, we are not following anymore what is written in the scriptures and all the dates went a little bit this side or that side. So he is also considering to tell us how we can proceed in the future. मैं आपकी बात को थोड़ा सा इस दूसरी दृष्टि से बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि धन्वंतरी का समय जो है वो राम के समय में, दशरथ के समय में मानना चाहिए। यदि ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन बहुत सी बातें उसके साथ ये भी देखनी पड़ेगी कि धन्वंतरी का आविर्भाव हम जिस प्रकार से स्वीकार करते हैं उसका
पंडित मधुसूदन जी ओझा ने बड़े श्रेष्ठ ढंग से एक दूसरे प्रकार से वर्णन किया है। वहाँ युद्ध बताए हैं, 12 देवताओं और असुरों में 12 युद्ध हुए हैं। So, his professor is trying to tell us that there are this problem of Dhanvantri, because if there is somewhere Dhanvantri mentioned in together with Dasharatha in the time of Rama, he was very happy about that, but it's quite problematical topic, and even Pandit Madhusudan Oja, one Pandit who was living in the beginning of last century, he gave a description of 12 wars between Devas and demons, the Asuras and the Rakshasas and Devas. उनमें 4 युद्ध बहुत बड़े थे। उन 4 युद्ध में हालाहल, कोलाहल, आडिबक और जलधि मंथन, जिसको हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। तो ये समुद्र मंथन एक युद्ध हुआ है। यद्यपि वेद में इस प्रकार का उल्लेख कहाँ मिलता है ऐसा कहीं ओझा जी ने संकेतित नहीं किया, पर वो ये मानते हैं कि बहुत से विषय लुप्त हो गए, तो ये इस प्रकार का एक संपर्क सूत्र भी नहीं मिल पा रहा है कि हम उस उदधि मंथन को और धन्वंतरी को दोनों को इस रूप में एक साथ जोड़ें। So out of these 12 wars between Devas and Asuras, there were 4 big wars, and one of them was the war when the whole ocean was churned and all this and the Dhanvantri came out. We cannot tell with assurance, Pandit Madhusudan Oja could not tell with assurance that this would happen, or that this churning of the ocean was happened with the help of demons and Rakshasas together and so on, but we are now trying to find out the real truth. लेकिन वे अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी लोक की सीमाओं को यहीं इसी भूमंडल पर बताते हैं। भौम स्वर्ग। So he did the Madhusudan Oja did confirmed his theory, so that he put the Svarg, the heaven, and the earth on the same place. So he put it together, that one part of the earth was called heaven and another part was called actually the earth, Prithvi. इसी बात को दूसरे इतिहासकार की दृष्टि से देखें, पंडित रत्नाकर शास्त्री, उन्होंने ये बताया कि ये युद्ध त्रिपोली के आसपास हुआ है। तो इस प्रकार से ये मानते हैं कि जो उदधि मंथन या समुद्र मंथन युद्ध हुआ, उस युद्ध के साथ हम इस प्रकार की बातों को भी जोड़ सकते हैं कि संभवतः संधि के रूप में, क्योंकि ये भागवत पुराण में भी प्रथम खंड में ये बात आई है कि जब देवता भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ये कहते हैं कि कभी कभी शत्रु से भी संधि कर लेना बहुत अच्छी बात होती है, और जब अवसर आवे तो हम उसको वापस अपने शत्रुत्व भाव को प्रकट कर सकते हैं। So on the other side, the other historian Ratnakar Shastri said that this happened near Tripoli, and it's also confirmed with a few scriptures. Out of them is Bhagavad Puran, and which says when the Devas come to the Lord Vishnu for help, and Vishnu told them that you should sometimes take the help of your enemy to actually ultimately win the war. So in that sense we can also say that the churning of the ocean was in like some time of peace time of one of these big wars between Devas and Asuras. तो उस समय ये युद्ध हुआ, और उस युद्ध की संधि में धन्वंतरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि धन्वदेश को जो है, रेगिस्तान को, कैस्पियन सागर और उधर की जो दूसरे स्थान हैं उनके साथ भी इतिहासकारों ने जोड़ने का प्रयत्न किया है।
So Dhanvantari had actually the importance at the end of this war, and also the Caspian Ocean, which is now dry, or now is Caspian Lake. So, but it's very important in this matter. यदि हम धन्वंतरी को दशरथ के समय का माने, बहुत अच्छी बात है, तो सुश्रुत का और धन्वंतरी का आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि धन्वंतरी नाम को उन्होंने उपनाम के रूप में धारण करते आए बाद में। तो ये मूल जो आविर्भूत धन्वंतरी है, इनकी भी एक इतिहास है, कथा है, जिन्होंने जन्म लिया वहाँ काशी राज के, और इनकी चौथी पीढ़ी में दिवोदास धन्वंतरी हुए। वो दिवोदास ही थे, नाम दिवोदास था, लेकिन उसी विद्या को, जो विद्या उस धन्वंतरी के पास थी, उनको इन्होंने प्रायोगिक रूप में भी व्यवस्थित रूप से किया और उसका सैद्धांतिक विस्तार भी किया। इसलिए इनको धन्वंतरी, उन 3 पीढ़ियों के बजाय इन चौथी पीढ़ी में उस धन्वंतरी के पास ज़्यादा विख्यात स्वरूप रहा, ऐसा मानते हैं। So there is, because there is the difference between the war of the demons and the gods, devas and asuras, and this Dhanvantari who created the Sushrut Samhita, because of course the possibility is that the same, we use the same family name in the our generations. So there was one Dhanvantari in Kashi area, and the 4th generation is Devdas Dhanvantari, who was actually, he was so famous for his Ayurvedic skills that he was actually called Dhanvantari. And in this case we can also use that Dhanvantari from the war of Devas and demons is different from this Dhanvantari who created Sushruta Samhita. धन्वंतरी के संबंध को दशरथ के साथ जोड़ने के लिए हमको उन सुश्रुत, रामायण और अन्य दूसरे उनसे संबंधित जितने भी शास्त्र हैं, उनमें यह ढूंढना होगा कि उस समय के विशेषज्ञ वैद्यों का, जैसा कि सुश्रुत में अनेक नाम आए हैं, वे नाम उसी रूप में क्या रामायण के समय में प्रचलित थे, या रामायण के अंदर जिन चीज़ों का या जिन प्रक्रियाओं का वर्णन है, ऐसी प्रक्रियाओं का उल्लेख रामायण में क्यों नहीं, जो सुश्रुत में होना चाहिए था या सुश्रुत में है, ऐसे विषयों का उल्लेख उस समय भी कहीं मिलता है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। और ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि धन्वंतरी का समय हम दशरथ के समय में मान लें। So if we want to make sure that Dhanvantari was born in the time of Dashrath, we have to look at the Sushruta Samhita and all the Vedacharyas of the doctors who were mentioned there, and also in Ramayana and all the doctors who were mentioned there. If this happens, it will be excellent. It's very difficult, but excellent job, and it will be good to have it done. क्योंकि सुश्रुत के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं। एक शालिहोत्र के पुत्र सुश्रुत को सुश्रुत मानते हैं, एक विश्वामित्र सुतः श्रीमान सुश्रुतः परिपृच्छति। यहाँ तो सब जगह यही है, इसमें तो यही है। हाँ, इसमें भी है। तो क्या ये कौन सा सुश्रुत कहाँ किस समय है, ऐसी बात को भी देखना पड़ेगा। और विषयों को एक दूसरे स्थल पर ढूंढना जरूरी है। जब तक वो नहीं ढूंढेंगे तब तक इतिहास जो है हम जोड़ नहीं सकते। So that the problem what happens is that there are many other possibilities when Dhanvantari, how Dhanvantari was born, is this from Vishwamitra's son or is from the Salidan's son or somebody else's son. So we have to take care all of them in account and then to prove who actually was who was the author of Sushruta Samhita and who was Dhanvantari. अब ये तो खैर ये प्रसंगोपात बात थी। रही बात गीता की, तो गीता में जिस प्रकार से श्रेष्ठतापूर्वक इंद्रियों और मन के भावों को और स्वरूप को, संबद्धता को बताया गया है, वह निश्चित रूप से आयुर्वेद के बहुत निकट है। So the way how the Bhagavad Gita is made and what the teachings of Bhagavad Gita are, these teachings are very similar, almost identical as in Ayurvedic books. वहाँ एक स्थल पर आता है कि बुद्धि और इंद्रियों के स्वरूप को सुख दुखम अनारंभात आत्मस्थे मनसी स्थिरे। सुख दुख जो है ये सब आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते।
आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इनके सब सन्निकर्ष से सुख और दुख ये उत्पन्न होते हैं। और ये यदि आत्मा को मन में स्थिर कर लिया जाए तो सुख दुख जो है उनका अनारंभ हो जाएगा, आरंभ ही नहीं होगा। ऐसी बात चरक, महर्षि चरक कहते हैं। So the Charak, Maharishi Charak said that if you put the Atman, the self, knowledge of the self, and fix it in your mind, then all this problem of senses, of the happiness and unhappiness will come to the, will stop. So we can see that there is big similarities with Bhagavad Gita and Ayurvedic. ठीक ऐसे के ऐसे शब्दों को गीता में प्रयुक्त किया गया, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। In the same time, similar words or exactly the same words were used in Bhagavad Gita. और जिस समाधि का निर्देश किया गया है, विषयेभ्यो निवर्त्य आत्मनि मनसो नियमनम, मन को आत्मा के अंदर नियमन कर लिया जाए, यही बात चरक और सुश्रुत कहते हैं और यही बात गीता में निर्दिष्ट की गई है। तो दार्शनिक दृष्टि से आयुर्वेद के और गीता के बहुत से संपृक्तता है, संबद्धता है, एक दूसरे की निकटता है। So here we can see that in the Indian traditions, doesn't matter that you study the philosophy, you study Ayurveda or you study Bhagavad Gita, there are same things said in all of these texts. So it shows the union of everything what is written in India. चरक में कहा गया है, अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, व्यक्ताद अव्यक्तताम पुनः। गीता के इन वाक्यों को किसने किससे लिया, ये कहने सोचने की बात नहीं है कि दार्शनिक भाव किस प्रकार से इस भारतवर्ष में प्रचलित रहे हैं। जितने भी चाहे आयुर्वेद के ग्रंथ हों या दार्शनिक ग्रंथ हों, उनमें मूल सैद्धांतिक प्रक्रियाएं, मूल सैद्धांतिक विषय एक दूसरे से बहुत कुछ जुड़े हुए हैं। So here this mantra which Professor said from Bhagavad Gita, the similar type of mantras can be seen in Charak Samhita and Sushruta Samhita. And it's not the question, because on the West we like to think who was the first, who copied from whom, but the thing is that people are trying to explain the same phenomena, the same problem they try to explain in different texts on a slightly different way. But because it's the same problem, if you try to create the water will be created only in some way, there is no other way to create the water. So in the same way, whatever you explain in a philosophical way, it will be similar in all books. और दोनों में एक ही बात है कि निर्विकार भाव से जो प्रक्रिया की जाए तो इन सुख और दुख से दूर हुआ जा सकता है। चरम लक्ष्य दोनों का ही मोक्ष है। मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त की जाए, पहले स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इनको यदि करना है तो आरोग्य शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। और शरीर का आरोग्य करेगा कौन? ये आयुर्वेद करेगा। इसलिए आयुर्वेद का उद्देश्य भी वही मोक्ष प्राप्ति है। So if you do everything selflessly, there will be much easier. These problems with happiness, unhappiness will come to an end. And as we heard from in Indian tradition, there is this dharma, art, kam or moksha, these 4 steps of purusharths of human life. But Ayurveda puts one more step. He said, if you want to fulfill any of them, you have to have healthy body. So that is the difference between the philosophy and the practical part of Ayurveda. गीता कहती है समत्वम योग उच्यते या योगस्थ है कुरु कर्माणि, तो यहाँ आयुर्वेद कहता है योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम। योग और मोक्ष में संपूर्ण वेदनाओं की अवर्तन होता है, वहाँ निवृत्ति हो जाती है। तो ये योगस जो चित्तवृत्ति की निरोध की प्रक्रिया है, ये यहाँ मन को नियमन करने के अनेक जो उपाय निर्दिष्ट किए गए हैं उनमें निहित है।
So, like in yoga, in Bhagavad Gita is said, and also in Sushruta Samhita, they said that the yoga and moksha come to the same point from the stillness of the mind, chittavritti nirodha, from the when your thoughts become completely balanced or completely disappear. इसलिए आयुर्वेद में इस बात को कहा गया है मोक्ष से निवृत्ति निश्शेषा, मोक्ष में संपूर्ण प्रकार की निवृत्ति हो जाती है। और यही बात गीता कहती है कि वहाँ तुम सब कुछ छोड़ करके मुझ में संस्थित हो जाओ। तो ये जो भावना दार्शनिक भावों की अभिव्यक्त की गई है, ये निश्चित रूप से दुख की निवृत्ति के लिए है। इसीलिए उन्होंने प्रारंभ भी इससे बात किया है कि तुम ये भूल जाओ कि ये तुम्हारे मामा, चाचा, नाना, ताऊ कौन है, क्या है, पहले क्या थे और आज क्या है। तो इस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करना एक दार्शनिक प्रक्रिया का अंग रहा है। So in Bhagavad Gita, it's the point how to solve the problem between the fight between the family members is that you don't look at them as the family members, you just look at them according to their deeds. And then the same thing in Sushruta Samhita, he said, when you come to the moksha, the ultimate moksha is you, when all the vikaras, all the problems which you have in the body or in the mind are solved and balanced. इसलिए वो कहते हैं उपधा ही परो हेतुर दुख दुखाश्रय पद है। उपधा अर्थात तृष्णा ही इन संपूर्ण दुखों का मूल है। उपधा छोड़ दोगे तो नैष्ठिकी या विनोपधाम, उपधा के बिना जो अत्यंत मोक्ष रूपा जो निष्ठा है वो प्राप्त होगी। ठीक गीता का उपदेश भी यही है। इस प्रकार से गीता जिस बात को निर्देश करती है वो दुख की निवृत्ति के लिए है, और आयुर्वेद जिस बात को कहता है वो भी दुख निवृत्ति के उपायों का निर्देश करता है। तो आज के दिन यदि हम इस गीता को, जैसा कि महाराज अनंत शर्मा जी ने इस बात को बड़े ही श्रेष्ठ प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया है, तो हमको ये भी देखना चाहिए। आप कर दें, फिर अंत में दो बात और बोलूँगा मैं। As Professor Gore said, he mentioned few more mantras from your sentences from the Sushruta Samhita and Ayurvedic Granths, and they are similar in the Bhagavad Gita, and it's a proof how these texts are united and how they are telling the same thing. And of course, it is for us that we actually go further in them to search for the solution, how to improve our life. आपने जो एक महत्वपूर्ण बात बताई कि धन्वंतरी और धन्वंतरी त्रयोदशी और दीपावली को एक साथ जोड़ा गया है। ये धन्वंतरी, त्रयोदशी, दीपावली, अन्नकूट, और ये जिस प्रकार से इनका एक सम्मेलन किया गया है, यदि हम इसको आयुर्वेदीय दृष्टि से इसको विश्लेषण करें, ये ठीक है धन्वंतरी को हम उनके साथ वैसे जोड़ लें, लेकिन हम आयुर्वेदीय दृष्टि से करें तो ये काल शरीर के संशोधन का काल है। जिस प्रकार से हम बाहरी अपने भवनों का इनका एकदम सफाई करके और दीपावली का स्वागत करते हैं, ठीक इसी प्रकार से धन्वंतरी को याद करने का उद्देश्य भी यही है कि इस काल में हम संपूर्ण प्रकार से हमारे शरीर का शोधन करें। क्यों कि आने वाला काल जो है, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु दोनों ही, वो आने वाला काल रसायन द्रव्यों के प्रयोग के लिए उत्कृष्टतम काल है। इसीलिए उस उत्कृष्ट रसायन की प्राप्ति के लिए शरीर का शोधन करना जरूरी है। So from Ayurvedic point of view, that Diwali, Annakut and Dhanvantri are actually there now in one day, and one of the solution for that is that we can, this day or these days are meant for the inner and outer purification, purification of our body, purification of the space, because the cleaning is going on, and because after Diwali the cold season will start and people have to purify themselves so that they could start taking these
rasayan. Rasayan is one kind of liquid like soup or tea, which will help them to, without any problem, to go through the winter season. इसलिए भगवान धन्वंतरी को धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन स्मरण करते हुए आगे का काल जो है हमारे श्रेष्ठतम स्वास्थ्य के अनुवर्तन के लिए है, किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य श्रेष्ठता पूर्वक बना रहे, इसके लिए भी हम याद करते हैं। ऐसा भी एक उसके साथ विश्लेषण किया जा सकता है। So we can also explain that on 13th day in Dhanvantari, we remember Dhanvantari for the reason of our health and to purify our lives, and then we live healthy after this time. पुनः आयुर्वेद के महर्षियों और गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। And many pranams, much respect to the Maharishis who made Ayurveda and Bhagavan Krishna who wrote Bhagavad Gita. With this, I would like to thank to our dear Professor Gors and Professor Anandji, and I'm sorry that my translation was not accurate as much as possible. It's very difficult to translate. There's so many technical terms, but the knowledge which is in the Indian tradition, the knowledge which is hidden in Ramayana, Mahabharata and Ayurvedic scriptures is immense, and I would all implore you, please go and read any of these scriptures which you like. With this, we will conclude this program. Thank you very much. Adieu.